والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله العظيم. سبحان اللہ. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وعلى آلك وأصحابك وأصحابك يا نور الله. يا نور الله. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے زکوٰۃ کے تعلق سے کل چند چیزیں اور زکوٰۃ کی فرضیت، یعنی جب زکوٰۃ ہم پر کب فرض ہوئی تو ہم نے سنی، اور ہم نے یہ سنا کہ زکوٰۃ ہو یا کوئی بھی فرض ہو اس کو کیسے دل سے ادا کرنے کا جذبہ رکھنا چاہیے، ایسا شوق ہم کو رکھنا چاہیے. نماز ہو اس کا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، اور نماز روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہمارا واسطہ اس چیز سے پڑتا ہے، تو اس وقت ہم جس محبت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو یہ چیز دکھاتی ہے کہ تم کتنا زیادہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو. اور جو شخص نماز پڑھنے کے لیے کس چیز کی قربانی دینا ہوتا ہے؟ وقت کی اور نفس کی، ہے نا. نفس جو ہے عبادت کرنے پر جلدی تیار نہیں ہوتا، اور سب سے زیادہ فجر کی نماز میں یہ چیز ہوتی ہے. فجر کی نماز لوگ کہتے ہیں، جو کمانے والے لوگ آج کل دنیا دار جو لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں زندگی کی جنگ میں سب سے دن کی پہلی جنگ جو ہے وہ نیند سے ہوتی ہے. دن کی شروعات جو پہلی جنگ سے ہوتی ہے وہ نیند سے ہوتی ہے. جو نیند سے لڑ لیا وہ کسی بھی چیز سے لڑ لیا، ہے نا. تو نیند جو ہوتی ہے وہ ایکچولی نفس ہوتا ہے. جو نفس سے لڑ لیا تو وہ الحمدللہ دیکھو اسلام مذہب کتنا پیارا ہے کہ آپ کو نیند سے لڑائی سکھاتا ہے، اس کی عادت ڈالتا ہے. آپ جو شخص فجر کی نماز کا عادی ہوگا اس کے لیے نیند کوئی بڑی چیز نہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا اکثر و بیشتر ہم مسلمانوں کا معاملہ جو معاشی اکنامیکلی جو ہم ویک ہیں، اس کی پوزیشن ہماری خراب ہے، اس کی وجہ ہے ہماری نیند اور زیادہ عیش و عشرت کا شکار ہے. ہم اپنی طاقت سے زیادہ خرچ کرتے ہیں، اور جتنی طاقت ہے اس سے کم ہم عمل کرتے ہیں، یعنی کماتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اور راتوں رات مالدار ہونے کی ہم کوششیں کرتے ہیں. سارے نفس ہمارے اندر ہیں جس کی وجہ سے ہم اس پہ سکسیز نہیں ہو پاتے. تو انسان اپنی نفس کی سے لڑنا سیکھتا ہے نماز کے ذریعے. زکوٰۃ دینے کا معاملہ ہے، حج کا معاملہ ہے، اور یا پھر دیگر جو فرائض ہیں اس کے ادا کرنے. تو ہم نے یہ سنا، اور انشاءاللہ ہم اس جذبے کو اپنا قائم بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور روزانہ 5 وقت ہم اپنے اس جذبے کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پروف بھی کریں گے. اللہ تبارک تعالیٰ کو عمل دکھا کے کرنا ہو، یعنی جب ہم کوئی عمل کرتے ہیں نا تو اللہ کو تو دکھاتے ہیں، ہے نا. دنیا کو نہیں دکھانا لیکن اللہ تعالیٰ کو دکھانا، اور اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہی ہے نا. تو یہ نیت بھی رکھیں گے اللہ میں تجھ کو دکھا رہا ہوں، تو اللہ ہی تو دیکھے گا، اور اللہ جب دیکھتا ہے تو خوش ہوتا ہے. زکوٰۃ کس کس چیز کی ہوتی ہے آج ہم کو اس کے بارے میں سننا. اقسام زکوٰۃ: جانوروں کی زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے چاندی کی زکوٰۃ ہوتی ہے، اور اونٹوں کی زکوٰۃ ہے، گایوں کی زکوٰۃ ہے، بکریوں کی زکوٰۃ ہے، زمین کی فصل کی زکوٰۃ ہے. ابھی اس کتاب میں کیونکہ اس دور میں یہی سب مال ہوا کرتا تھا، اس وجہ سے اس کے بارے میں زیادہ ہے. اور آج کے زمانے میں جو ہے سونا چاندی یہ زیادہ ہے، تو اس وجہ سے اس کی زکوٰۃ. پھر مال تجارت کی زکوٰۃ. مال تجارت یعنی جو بھی مال ہم نے تجارت کی نیت سے خریدا ہے، بیچنے کے لیے خریدا ہے، بیچنے کے لیے جو مال خریدا ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے. جیسے اس کی ایک مثال ایسی بھی ہے، مسئلہ آ گیا تو سن لیتے ہیں. جیسے گھر یا گاڑی سواری وغیرہ ہم جو خریدتے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں. آپ کے اگر 100 بھی گھر ہو نا تو اس پر زکوٰۃ نہیں. کروڑوں کی پراپرٹی ہو لیکن دکان ہے، مکان ہے، تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے کوئی ایک دکان اس نیت سے خریدی
कि मैं इसको वक्त पड़ने पर बेच दूंगा, यानी जब इसका थोड़ा भाव बढ़ेगा तो बेच दूंगा, तो ये तिजारत हो गई। तो अब इसको आपने जितने में खरीदा है उतने का 2.5% आपको ज़कात साल पूरा होने पर देना पड़ेगा। समझ में आया? अब कोई घर हमने ऐसे खरीदा कि बस लेने के लिए खरीद लिया, ठीक है। अब जब हमने उसकी बेचने की नियत कर ली, बेचने की नियत करी, तो जब तक बिकेगा नहीं तब तक उसके ऊपर ज़कात फर्ज नहीं हो, यानी भले से नियत कर लेने से कुछ नहीं होता, क्योंकि जिस टाइम खरीदा था तो हमने बेचने की नियत नहीं रखी। लेकिन अब उसके बाद में, खरीदने के बाद फिर हमने बेचने की नियत की कि अगर पैसा कुछ ज़्यादा आया तो बेच दूँगा, तो अभी भी वो तिजारत का नहीं हुआ जब तक वो बिकेगा नहीं, ठीक है ना। और शुरू से ही नियत थी बेचने की, तो अब उसकी जो रकम थी उसकी ज़कात 2.5% देनी पड़ेगी। और किसी शख्स ने बेचने की नियत से खरीदा, लेकिन उसके बाद उसका इरादा बदल गया कि अब मुझे नहीं बेचना, तो उसको ज़कात नहीं दी। यानी कितना एक्सेप्शन देखो कितने ज़्यादा हैं, कितनी ज़्यादा छूट कितनी है, और इतना अल्लाह ताला ने कम रखा है, उसके बावजूद भी हमसे होता है। नमाज अल्लाह ताला ने कितनी कम रखी, दिन भर में सिर्फ 5 वक्त है। अगर दीगर हम बाकी के हम अपने दुनिया के काम देखें तो सोने में हमारा 1/3 ऑफ डे खर्च होता है। 8 घंटा अगर हम सोते हैं तो 1/3 अपने पूरे दिन का हम खर्चा कर देते हैं। नहाने धोने खाने पीने के अंदर भी कम से कम हमारे 2.5-3 घंटे तो जाते हैं। कोई शख्स नहाता है, खाता पीता है, दिन में चाय नाश्ते के लिए थोड़ी बहुत देर सुकून से बैठता है, घर में बातचीत करता है, तो उसमें 2.5-3-4 घंटे तो इसी में चले जाते हैं, है ना। और अगर कोई शख्स 5 टाइम की नमाज़ पढ़े तो 5 टाइम की नमाज के लिए मुश्किल से 1.5 घंटा दे, कितना कम है, सबसे कम टाइम इसमें लगता है। और जबकि हम अपने दोस्तों के साथ गपशप इतनी देर कर लेते हैं, 1-1.5 घंटा तो ऐसे ही कब चला जाता है पता नहीं चलता। मोबाइल हाथ में लिया और थोड़ी देर के बाद पता चला कि 1 घंटा गुजर गया। तो दिन भर में टुकड़ों में अगर हमारा 1-1.5 घंटा जाता है तो ये बहुत ही कम होता है। उल्टा ये चीज़ शेड्यूल को हमारे मजबूत भी करती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो जानवरों की ज़कात है, माल तिजारत की ज़कात है, सोने चांदी की ज़कात है। उसके अलावा आपने शायद नहीं सुना होगा, दफीने की भी ज़कात होती है, ख़जाना। ज़मीन से कभी कोई ख़जाना निकल गया, अब आप कहेंगे ये ज़कात फ़र्ज़ ज़रूर होना चाहिए, ये ज़कात का फ़र्ज़ है। तो इसमें जो है इसको खुम्स कहते हैं। इसका जो अगर ज़मीन से कोई ख़जाना निकल जाए तो इसकी जो ज़कात होती है उसको खुम्स कहते हैं। खुम्स का मतलब होता है पाँचवा हिस्सा। जो भी मान लीजिए 1 करोड़ की प्रॉपर्टी, 1 करोड़ का सोना निकल गया तो आपको उसका 5वां हिस्सा यानी 20 लाख का सोना आपको सदका करना, ज़कात देनी, ठीक है। और जो खेती है उसका उश्र, खेती की जो ज़कात निकलती है ना उसको उश्र कहते हैं। उश्र अशरा मालूम है, अशरा कहते हैं 10वें हिस्से को उश्र कहते हैं, यानी उसका 10वां हिस्सा, इसको खुम्स कहते हैं, इसका 5वां हिस्सा, है ना। एकदम इजी, अगर याद रखने के लिए बड़ा आसान, खुम्स और उश्र, ठीक है ना। लोग समझते हैं कि उश्र इसका नाम है, हकीकत में वो 10वें हिस्से को उश्र कहते हैं। और खुम्स समझते हैं इसका नाम है, नाम नहीं बल्कि उसका 5वां हिस्सा, इसके उसको खुम्स कहते हैं, ठीक है। तो दफीने और मादनियात की भी ज़कात होती है। अच्छा, दफीने के अलावा जो किसी चीज़ की कान है हम अपने पास, कान समझते हैं, खान, हम खान कहते हैं, एक्चुअली उसको कान कहते हैं, उसका असली वर्ड जो है कान, जिसको उर्दू में मादनियात कहा जाता है। ज़मीन से निकलने वाली चीज़ है, जैसे अरब में तेल निकलता है ना, और झारखंड में कोयला निकलता है ना, और कुछ मालूम है वहाँ पर क्या निकलता है, साउथ अफ्रीका में सोना भी निकलता है ना। और हीरे ज़मीन में निकलते हैं, है ना, ज़मीन में से नहीं, उसकी भी कान होती है ना। हाँ, तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं कान से जो निकलती हैं, कान से, इसका भी जो है खुम्स है, खुम्स यानी इसका भी 5वां हिस्सा दिया जाता है। जितना भी निकले, मान लीजिए कोयला है, पर ईयर समझ लीजिए 100 टन निकल रहा है, तो उसमें से जो 20 लाख किलो जो होगा वो देना पड़ेगा, है ना। टन यानी कितना का जो भी है उसका आपको 10% देना, 5वां हिस्सा, माफ करना। और छठी किस्म है ज़कात की सदका फ़ित्र। सदका फ़ित्र जो है वो भी हम पर फ़र्ज़ है, वो भी एक ज़कात का ही एक हिस्सा है, लेकिन इस पर साल गुजरने की ज़रूरत नहीं है। हमको मालूम है कि जब ईद आती है तो ईद के दिन से पहले वो सदका फ़ित्र अदा करना होता है। ये रमज़ान का होता है सदका फ़ित्र, और जो हर कोई शख्स इसको अदा करता है। इसी के ताल्लुक से थोड़ा सा सुनते हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये बाकी का जो था उसकी डिटेल हमारे यानी अभी मतलब की नहीं है ना। जो
माल तिजारत जो था उसकी डिटेल मैंने थोड़ी सी आपको बता दी, ठीक है। सदका फित्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिसके पास अपने और अपने ज़ेर किफ़ालत लोगों के लिए ईद उल फित्र और उसकी रात के खाने से एक सा ज़ायद उन चीज़ों में से है जिनको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। इतनी हार्ड उर्दू हो गई, यानी ये लाइन में तो कुछ समझा ही नहीं होगा। अब ये चैलेंज है आपके लिए, मैं फिर से पढ़ता हूँ, अब आप समझो इसको, ठीक है ना। यानी लाइन थोड़ी लंबी थी और ये अंदाज था पहले के लोगों का ना, लिखने का ये अंदाज होता था 10 लाइनों को एक लाइन में समेट देते है ना। इसको क्या कहते हैं? जामे, जामे, समझना, यानी इसको जामे कहते हैं, फसीह अल्फाज इस्तेमाल। सदका फित्र सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से हर उस मुसलमान पर वाजिब है जिसके पास अपने और अपने ज़ेर किफ़ालत लोगों के लिए ईद उल फित्र और उसकी रात के खाने से एक सा ज़ायद यानी ज़्यादा उन चीज़ों में से है जिनको बतौर ग़िज़ा इस्तेमाल किया जाता है। आप समझना है, यानी इसके अंदर करीब 6-7 लाइन्स हैं जिसको एक ही लाइन में रोक दो, ठीक है ना। आप देखो कितना प्यारा मज़हब है कि ईद के दिन हर किसी शख्स को खाने पीने की चीज़ें ईद मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए चाहिए। और यहाँ बताया गया कि ईद के दिन में जो खाने पीने की चीज़ें हैं उससे एक सा जायद जिसके पास भी है उसके ऊपर सदका फित्र वाजिब है। यानी जायद है तो वाजिब, जिसके पास ज़्यादा नहीं है तो उसके ऊपर वाजिब नहीं। इसका मतलब अब मान लीजिए इलाके में 100 घर हैं, 100 घर में से 80 घर हैं कि जिनके पास ईद मनाने के लिए है और बाकी के 20 लोग हैं जिनके पास नहीं, कुछ भी नहीं। तो वो ये 80 जो लोग हैं ये अगर अपना जो एक्स्ट्रा एक सा या उससे ज़्यादा है वो थोड़ा थोड़ा अगर देंगे तो ये 20 की भी ईद बन जाएगी। एक्चुअली इसका ये कॉन्सेप्ट है, अल्लाह तबारक ताला ने ये इस तरीके से हम पर वाजिब किया। और देखो ना, ज़कात जो है साल में एक मरतबा फ़र्ज़ है, साल में एक बार फ़र्ज़ होती है, उसके बाद इंसान उसको अपने टुकड़े टुकड़ों में देता है। लेकिन हो सकता है कि कोई शख्स ईद के एक दिन पहले ना दे या कोई भी ना दे, तो अल्लाह ताला ने स्पेशली ईद के एक दिन पहले, ईद से पहले पहले देने का ये सदका फित्र वाजिब किया ताकि कम से कम ईद तो बन जाए। क्योंकि ज़कात आदमी देगा कभी भी देगा, हो सकता है किसी और महीने में दे दी या किसी और वक्त दे दी, तो लेकिन ईद के दिन ना हुआ तो ईद के दिन हो, इसलिए नमाज से पहले पहले सदका फित्र वाजिब कर दिया गया कि अदा करो। तो यानी ईद की नमाज से पहले पहले जिसके पास आ गया वो ईद अपनी अच्छे से मना ले। तो ये इस्लाम ने बिल्कुल इंसान की फितरत के मुताबिक या इसको कानून को बनाया है, और ये अल्लाह ताला का कानून है क्योंकि अल्लाह ही के बंदों के लिए है। तो अल्लाह तबारक ताला ने इसके अंदर हर उस चीज़ का ख्याल रखा है कि जिसमें इंसान को तकलीफ हो सकती है तो उसकी तकलीफ कौन से कानून के ज़रिए दुरुस्त हो। तो अल्लाह ताला ने ये सिस्टम बनाया। और यकीनन अगर जब से इस्लाम फैलना शुरू हुआ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया लोगों को और उसकी तबलीग की और फैलना शुरू हुआ, तब से अगर आज तक कंटिन्यू उसके कवानीन पूरे दुनिया के अंदर अमल होते रहते, अब तक एक भी गरीब नहीं बचा उससे, कोई एक शख्स भी नहीं होता जो तकलीफ में होता या वो अपनी यानी तकलीफ में ज़िंदगी गुजार रहा हो। हर किसी के पास जीने के लिए, खाने पीने के लिए सब कुछ ठीक ठाक होता। और अभी आप अरब में देखते हैं, अब लोग यही कहते हैं कि अरब के अंदर जो है क्योंकि वहाँ पर मादनियात निकलती हैं इस वजह से वहाँ ज़्यादा फरावानी है पैसे की। ये ऐसा नहीं है, इराक़ में भी निकलता है लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। इराक़ में भी तो निकलता है ना, लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है। होता ये है कि यहाँ बादशाहत है जिसकी वजह से वो ठीक से तकसीम होता है। कोई एक देने वाला, तकसीम करने वाला अगर ठीक से तकसीम करे तो सबके पास उस चीज़ पहुँचती है। लेकिन अब उनकी भी हालत ख़राब होते जाती है क्योंकि अब उन्होंने भी अल्लाह के कानूनों से बगावत करना शुरू की। उनके यहाँ भी उल्टे सीधे काम होना शुरू हो गए, इस वजह से वहाँ का सिस्टम भी ख़राब होना शुरू हो गया। और अब थोड़े दिन के बाद अगर अभी क्या कह सकते हैं, अल्लाह करे या अल्लाह ना करे, क्या बोले पता नहीं, पेट्रोल की जब वैल्यू ख़त्म हो जाएगी उसके बाद क्या करेंगे। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोल के अलावा ऐसी दूसरी चीज़ें ईजाद की जा रही है जिसका काम पेट्रोल का काम वो कर दे, है ना। तब पेट्रोल का क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे पेट्रोल का। तो अल्लाह तबारक ताला ने ये मोहलत दी थी उनको आज 1400 साल से, यानी जब से वो निकाला जा रहा है, पता नहीं कितने साल पहले, मेरा जहाँ तक ख्याल है 200-250 साल पहले से ये माइनिंग शुरू हुई थी।
पेट्रोल डीजल वगैरह की, क्योंकि ये देखकर ही अंग्रेज़ों ने उस ज़मीन पर कब्जा करना चाहा था और इस वजह से वहाँ वहाबियत फैला कर और उसको अपने कब्जे में कर लिया और आज पूरा अमेरिका कंट्रोल कर रहा है उसको, है ना। तो वहाँ जो भी कुछ निकल रहा है वो सारा अगर ठीक से हम उसके ज़रिए अगर ठीक से तकसीम होता पूरे वर्ल्ड में, आप सोचो, एक बात आगे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ज़कात की बात है और ज़कात का कॉन्सेप्ट भी ये है कि कोई गरीब ना रहे। अगर उनके पास वो तो ज़कात वगैरह तो अपनी अलग चीज़ है, अल्लाह ताला ने अरब की ज़मीन पर इतना माल, इतना यानी डीजल पेट्रोल वहाँ इतना निकल रहा है, अगर वो वहाँ से ठीक से तकसीम करें पूरे दुनिया के अंदर तो यही उन लोगों के लिए काफ़ी हो जाएगा पूरी दुनिया के लिए। और अगर वो लोगों के खाने पीने की कफालत नहीं कर सकते, कम से कम वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाएं। ये आप लोगों के जहन में इसलिए डाल रहा हूँ ताकि वक्त पड़े तो आप किसी को बोल सकें। ये आइडिया पता नहीं उनको किसी ने दिया या नहीं दिया, बोला या नहीं बोला, पता नहीं, ये होना चाहिए। अगर उन्होंने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाई होती जिस तरीके से आज कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पर पूरी दुनिया के लोग जाकर पढ़कर और बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हासिल करते हैं, अगर ऐसी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ बनी होती और वहाँ पर मुसलमानों के लिए फ्री में पढ़ाई होती, फ्री में वहाँ अगर डिग्री मिलती, खाली एंट्रेंस के लिए यानी जो उसकी क्वालिफिकेशन देखी जाती, लेकिन वहाँ से अगर फ्री में डिग्री कराते तो सोचिए पूरी दुनिया के मुसलमान कितने अच्छे हो जाते हैं, है ना। क्योंकि पढ़ाई लिखाई का ही तो खर्चा है। अगर किसी एक गांव में, एक खानदान में या किसी एक घर में कोई बच्चा गरीब है, अगर वो उसकी पूरी कफालत पढ़ाई की कर दी जाए और वो पढ़ लिख के कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाए तो वो अपने और अपने गाँव को या अपने खानदान को कम से कम संभाल सकते है ना। एक एक गांव से अगर 4-4, 5-5 या 8-8, 10-10 लोग अगर इस तरीके से पढ़ लिख के ऊंची पोस्ट पर जाते हैं या अच्छे बिजनेसमैन बन जाते हैं तो वो अपने इलाके को संभालने के लिए काफ़ी हो जाते हैं। कुछ नहीं तो वो अपनी ज़कात ही लोगों को बांटते तो काम हो जाता। तो उनको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर वो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ बनाकर मुसलमानों को अगर सिर्फ एजुकेट करते तो भी काफ़ी था, लेकिन उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। सिर्फ ऐशो इशरत के अलावा उन्होंने किस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। हर साल गाड़ी चेंज कर रहे है ना, और नई नई चीज़ें और महल सोने चांदी से अटे हुए महल बना रहे, और उसके पड़ोस में ही अफ्रीका है, अरब के उस तरफ बीच में सिर्फ एक क्या लाल सागर है, रेड सी है ना, हिंदी में लाल सागर है ना भाई, रेड सी के उस तरफ पूरा अफ्रीका है। अफ्रीकन कंट्रीज की हालत देखो और अरब की ऐशो इशरत देखो। और अरब के अंदर जो खाना जितना फेंका जाता है ना, जितना खाना अच्छा फेंका जाता है, मेरा ज़्यादा ख्याल है उससे भी कम अफ्रीकन कंट्रीज में लोगों को खाने को मिलता है। तो ये चीज़ अगर सही से डिवाइड होगा तो भी इसका काम हो जाता है, लेकिन उन लोगों ने ज़रा भी इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए मैं यहाँ बोलना चाहता था, अल्लाह तबारक ताला आज नहीं कल उनसे ये चीज़ छीन ले। और हमको भी जब अल्लाह तबारक ताला मोहलत देता है, कोई चीज़ देता है, अब क्या क्या चीज़ गनीमत है। हज़रत एक अल्लाह के वली थे, उनका नाम मुझे ध्यान नहीं, मुकशफुल कुलूब में उनका नाम दर्ज है। उनका ये वाक़या है कि 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। 5 चीज़ों से पहले 5 चीज़ों को गनीमत जानो। कहते हैं मौत से पहले ज़िंदगी को गनीमत जानो, है ना, हदीस शरीफ है, वो उन्होंने कहा था, मैंने ऐसा सुना, बहरहाल जो भी है। और कहा कि मसरूफियत से पहले वक्त को गनीमत जानो। मसरूफियत, बिजी हो जाएंगे, इससे पहले अगर वक्त है तो इसका सही इस्तेमाल करना। तीसरा, कमज़ोरी से पहले ताकत को गनीमत जानो। बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत जानो। गरीबी से पहले अमीरी को गनीमत जानो। इस तरीके से 5 चीज़ें तकरीबन उन्होंने बताई। तो अगर हम जिस वक्त जो चीज़ हमारे पास है हम उसकी अगर अहमियत को समझें और ठीक से उसका अल्लाह ताला को शुक्र अदा करें तो अल्लाह तबारक ताला उसको और बढ़ा देगा। जैसे अभी हम यहाँ पर आते हैं तो इसका शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला और बढ़ाएगा। हम नमाज़ें पढ़ते हैं तो नमाज़ पढ़ने के बाद जब मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह ताला हमको और उसकी इबादत की तौफीक देगा। तो हमको चाहिए हम इसकी पाबंदी करें, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। और अपने माल की ज़कात देना ये भी शुक्र अदा करें। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ज़कात हमने कैलकुलेट कर ली तो बाद में भी दे सकते हैं मालूम है, तो ये सोचकर बहुत सारे लोग डिले करते हैं, देने में देरी करते हैं। ये भी नाशुक्रापन, कभी भी देरी नहीं करना चाहिए। और जिसके पास कोई ज़रूरतमंद आए और उसके पास ज़कात का पैसा है कि उसको दे देना चाहिए तो उसको दे देना चाहिए, ठीक है ना, इंशाअल्लाह। तो ये सारी चीज़ें थी सदक़े फ़ितर के ताल्लुक से। सुनते हैं, फरमाते हैं कि किसी के पास ईद की तैयारी के लिए, खाने पीने के लिए जो
چیزیں چاہیے اس سے اگر ایک سا زائد چیز ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اس کا اندازہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سا سے ہوگا. یہ سا جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سا ہے. سا یعنی ابھی اس کو جیسے آج کلو بولتے ہیں نا، تو وہ ایک پیمانہ تھا جس کو سا کہتے ہیں. اور یہ دوسرا اور ایک سیر کا تہائی حصہ ہے اس چیز کی جنس سے ہو جو وہ کھاتا ہے یا اس سے افضل ہو. جو چیز ہم کھاتے ہیں نا تو اسی کی طرح اسی میں سے نکالنا پڑے گا. ایسا نہیں کہ ہم گیہوں کھاتے ہیں 35 روپے کلو والا اور اس کی جو صدقہ فطر جو فطر نکالیں تو وہ ہم 30 روپے کلو والے سے نکالیں. جو چیز کھاتے ہو آپ کو وہی دینا پڑے گا. اگر گندم کھاتے ہو تو جو سے صحیح نہیں. کوئی گیہوں کھاتا ہے تو جو سے نہیں نکال سکتا. اور اگر مختلف غلے کھاتے ہو تو بہتر کو اختیار کریں. الگ الگ چیزیں کھاتے ہیں تو اس میں سے جو سب سے مہنگی چیز ہے اس سے دے. بہرحال جس سے بھی دے جائز ہے، اور اسے اس طرح تقسیم کرے جس طرح زکوٰۃ کا مال تقسیم کیا جاتا ہے یہ صدقہ فطر کے تعلق سے. لہٰذا تمام مصارف زکوٰۃ جن کو زکوٰۃ دی جاتی ہے کو گھیرنا ضروری ہے. آٹا یا ستو دینا جائز نہیں. احناف کے نزدیک جائز ہے. شافعی کے نزدیک جو ہے یعنی گیہوں دینا پڑے گا، اس کا آٹا نہیں دے سکتا. یہ شافعی کے نزدیک. لیکن امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے وہ آٹا یا ستو بھی آپ دے سکتے ہیں نا. اب اس میں کیا لاجک ہے پتہ نہیں. امام شافعی نے کیوں منع کیا پتہ نہیں. امام ابو حنیفہ نے کہا وہ گیہوں ہو یا آٹا ہو، 1 کلو گیہوں کا آٹا بھی 1 کلو ہی ہوتا ہے نا. اب وہ جو کٹ کر دیتے ہیں اس کو چھوڑ دو. یعنی 1 کلو اگر آٹا دیا جائے تو غریب کے لیے اور اچھا ہے کہ اس کو پیسنا بھی نہیں پڑے ہے نا. مرد پر اس کی بیوی، غلاموں، اولاد اور ہر وہ قریبی رشتہ دار جو اس کی کفالت میں ہیں، اس کے انڈر میں ہیں، ان کا صدقہ فطر واجب ہے. یعنی اس کے ماں باپ اور اولاد میں سے جن لوگوں کا نفقہ اس پر لازم ہے ان کی طرف سے صدقہ فطر دے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرو جو تمہاری کفالت میں ہے. یعنی یہاں تک کہ گھر میں اگر کوئی نیا بچہ بھی پیدا ہوا نا اس کا بھی صدقہ فطر دینا ہوتا ہے. احناف کے نزدیک اگرچہ بیوی اور بالغ اولاد کا صدقہ فطر اس کے ذمے نہیں ہے، لیکن اگر ادا کرے تو ادا ہو جائے گا بشرطے کہ اس کی کفالت میں ہو، ورنہ اجازت ضروری ہوگی. یعنی یہاں تک کہ امام ابو حنیفہ کے نزدیک جو ہے جو بالغ بچہ ہے اس کا صدقہ فطر دینا جو ہے باپ پر واجب نہیں. سبحان اللہ تو بولو ہے نا. اس پر واجب نہیں ہے. کفالت میں بھلے سے اس کا باپ کا کھا رہا ہے ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اگر بالغ ہو گیا تو باپ پر ضروری نہیں صدقہ فطر دے. ہو سکتا ہے کہ آپس میں کچھ ایسی خواہش ہو ہے نا کہ باپ صدقہ فطر دینے سے انکار کرے کہ میں نہیں دیتا، جا اپنا خود دیکھیں. تو اگر اس پر واجب ہوتا تو یہ گنہگار ہوتا. بیٹے بولتے دو نا تم گنہگار ہو گئے، میں کیا کروں ہے نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے دیکھو قانون کیسا بنایا کہ بالغ ہے تو اس پر واجب ہے. یہ بات الگ ہے کہ اگر یہ دے دیتے ہیں تو ادا ہو جاتا ہے. ہم کسی کا بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں، کسی کا بھی فطرہ دے سکتے ہیں، اور کسی کی بھی زکوٰۃ ہم ادا کر سکتے ہیں. مان لیجیے کسی پر کوئی زکوٰۃ ہے لیکن وہ ابھی دے نہیں سکتا ہے، اس کے پر یعنی زکوٰۃ فرض تھی اور اس کا پھر کہیں خرچہ ہو تو زکوٰۃ جو فرض تھی وہ تو ادا کرنا نہیں پڑے گا، تو ہم اس کی طرف سے اب زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. جو غلام 2 آدمیوں میں شریک ہو تو دونوں پر صدقہ فطر واجب ہوگا. اب یہ سسٹم ہے نہیں. پہلے غلام جیسے دونوں نے مل کے غلام خریدا، ایک غلام ہے جو 2 لوگوں نے مل کے خریدا، آدھے پیسے تیرے آدھے پیسے میرے اور دونوں کی خدمت کرے گئے ایسا. تو اب دونوں پر واجب ہے کہ اس کا صدقہ دے، فطر دے. کافر غلام کا، اور حنفیوں کے نزدیک جو ہے دونوں میں سے کسی پر بھی نہیں، اور کافر غلام کا صدقہ فطر واجب نہیں. اگر یعنی جو کافر ہے تو اس پر تو صدقہ فطر ہے ہی نہیں. اگر عورت خود اپنی طرف سے ادا کر دے تو کفایت کرے گا، لیکن خاوند اس کی اجازت کے بغیر ادا کرے تب بھی جائز ہے. اور اگر کوئی شخص بعض افراد کا صدقہ ادا کر سکتا ہو تو بعض کا ادا کر دے، اور ان میں سے اولا وہ ہیں جن کا نفقہ اس پر لازم ہے. یعنی میں نے بتایا نا جیسا بھی کسی کا بھی صدقہ فطر ہم ادا کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے نفقہ کو بیوی کے نفقہ پر اور بیوی کے نفقہ کو خادم کے نفقہ پر مقدم فرمایا. جیسے اگر کوئی کہے کہ بھائی میں 4 لوگوں کا دے سکتا ہوں
तो उसमें किसको प्रेफरेंस देना है ये भी बता दिया गया, ठीक है। ये फिकी अहकाम है, मालदार आदमी के लिए इनका जानना ज़रूरी है, और बाज़ औक़ात नए वाक़यात रूनुमा होते रहते हैं जो इन मसाइल से बाहर होते हैं, तो इस वक्त उलमाए किराम से पूछने पर इक्तिफा करें, लेकिन ये मसाइल याद होने चाहिए जो हमने अभी तक सुने। तो ये सारी चीज़, ये कितने किस्म के ज़कात होती है मैंने आज आपको बताया। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले तो जानवरों की ज़कात। जानवरों में भी कौन से जानवर हैं? जो पालतू जानवर होते हैं ना, सिर्फ उसकी ज़कात, ठीक है। कुत्ता वगैरह किसी ने पाला है अगर तो उसकी ज़कात नहीं होती, हिरन की भी ज़कात नहीं होती, ठीक है ना। गाय, बैल, भैंस, ऊँट, बकरी, मेंढा, ये सब की खाली ज़कात होती है। उसके अलावा तिजारत का माल, सोना, चांदी, मादनियात जो ज़मीन से निकलता है, या खजाना, दफीना और मादनियात दोनों अलग अलग हैं। खजाना निकलना अलग हो गया, और जो माइनिंग करके निकालते हैं वो चीज़ें अलग होती हैं। और फिर आखिर ये सदका फितर। तो ये ज़कात में इतनी बहुत सारी यानी किस्में। अगर ये चीज़ आपने सुन ली, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई खास बात तो थी नहीं। आपको मैं बताऊं, आज की तारीख में अगर आप किसी को कहोगे कि भाई ज़कात के टाइप्स बताओ, नहीं बता पाएगा। आप पूछोगे किस किस चीज़ की ज़कात होती है, कितनी होती है, शायद कुछ आलिम भी इसमें से कुछ छोड़ दें, ये जितनी टाइप्स आपने सुने। तो ये मैं अब कहेंगे आप कि भाई ये क्यों बता रहे हैं? ये बताने की वजह ये है कि आप ऐसी प्योर चीज़ यहाँ पर सीख रहे हैं कि जो बहुत सारे उलमा को भी नहीं मालूम होती, वो भी नहीं यानी ध्यान देते, यानी पढ़ाया तो जाता है उनको, पढ़ाया सब जाता है, लेकिन याद नहीं होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम सीखते हैं तो हम यहाँ खुद अपने शौक से आए, हमारे माँ बाप ने एडमिशन नहीं कराए हैं, है ना। माँ बाप जब एडमिशन कराते हैं दारुल में तो मजबूरी में बच्चा पढ़ता है, यहाँ पर कोई मजबूर नहीं है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ रहे हैं, शौक से पढ़ रहे हैं। अगर हम सीख के याद रखते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक तआला का एहसान है कि इस इल्म में और ज़बरदस्ती के सिखाए हुए इल्म में डिफरेंस होता है। तो ये टाइम से याद रखेंगे ना इंशाल्लाह। कल जो है अदायगी और उसके ज़ाहिरी और बातनी जो शराइत है, ज़कात के बातनी शराइत, जो पहले ही दिन मैंने थोड़े बता दिए थे, इंशाल्लाह उसको डिटेल में सुनेंगे। और असली मज़ा इसी में, कल का टॉपिक है ना, इंशाल्लाह असली उसमें मज़ा इसी में आएगा। और इसके बातनी आदाब, जैसे आपने नमाज के बातनी आदाब सुने थे और उसकी बारीकियाँ सुनी थी, इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आएंगी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक तआला कहने सुनने से ज़्यादा हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबके तौफीक हमें खूब खूब नेकियां करके आखिरत का सामान करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला हमें इल्म दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला शरीयत के कानून को समझने, उसकी हिकमतों को जानने और जानकर उसको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरों को भी सिखाने की तौफीक अता फरमाए। मेरे मौला तमाम फ़राइज़ और वाजिबात को उनके वक्तों पर अदा करने वाला बना, दिल से अदा करने वाला बना। बिलखुसूस मेरे मौला हमें नमाज़ों को पंजगाना उनके वक्तों पर अदा करने वाला बना। मेरे मौला हमें नमाजों से मोहब्बत अता फरमा, इबादतों से मोहब्बत अता फरमा, शरीयत के कानून से मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से मोहब्बत अता फरमा, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत अता फरमा, औलिया इकराम, सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की मोहब्बत अता फरमा। मेरे मौला उनके मिशन को आम करने वाला बना, उनकी किताबों को पढ़ने वाला बना, उनकी किताबों को लोगों तक पहुँचाने वाला बना। मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जिंदा रखना, उन्हीं की मोहब्बत में मौत अता फरमा। मेरे मौला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार ख्वाब में अता, मौत के वक्त अता, कब्र में अता, हश्र के मैदान में अता, जन्नत में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का साथ नसीब फरमा, ईमान के साथ मदीने में मौत अता, जन्नतुल बकी में कब्र अता। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।